Hello 11th class students, welcome to our mathematics class. Friends, today we are going to start our new chapter 6 linear inequalities. स्टूडेंट्स अभी तक हम जो है इक्वेशंस के बारे में जो है वो रीड कर चुके हैं. इक्वेशंस में ऑल ऑफ यू नो दैट वी कम टू बोथ द एक्सप्रेशन हैव इक्वल टू साइन बिटवीन देम. But in case of inequation students, the expression must contain a sign of inequality between them. The sign of inequality may be less than, greater than, less than equal to or greater than equals to. ठीक है, तो इस तरीके का कोई भी एक्सप्रेशन इफ वी आर सेइंग x is less than equals to 4 और वी आर सेइंग x is greater than y plus 3, इस टाइप की जो भी आपकी एक एक्सप्रेशन होता है दैट इज कॉल्ड इन इक्वेशन. ओके, सो इन दिस वे वी कैन डिफाइन इन इक्वेशन अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट. एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे एंड अ साइन ऑफ इन इक्वेलिटी. इनइक्वेलिटी साइन में भी ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू. दिस मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन इन इक्वेशन और एन inequality. Next, inequation can be of two types, strict inequality and slack inequality. Obviously strict inequality means हम कह रहे हैं कि भाई it is strictly less than or strictly greater than. ओके, जहाँ पे हमारा इक्वल टू साइन इन्वॉल्व नहीं होता. It is strictly less than 4. If we are having the value 3.9, 3.7, 3.3, such these value are strictly less than 4. But if we are saving it may be the value of 3.3, 3.4 and 4, then obviously हम 4 वैल्यू को भी इंक्लूड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा x लेस देन इक्वल्स टू 4. ठीक है, तो इस तरीके से जो लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन के साथ जो हमारी इन्वॉल्व होते हैं जिसमें दैट इज द slack inequality. But if we are saying the strictly less than or strictly greater than, then the inequality is strict inequality. Now what is a linear inequation in one variable? जैसे हमने linear equation in one variable किया वैसे ही हमारी linear inequation in one variable होती है if the statement between two expression. ठीक है, ऑब्वियसली इक्वेशन में भी हमने क्या कहा था, दिस गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू एक्सप्रेशन. सिमिलरली लीनियर इन इक्वेशन ऑल्सो गिव अ रिलेशनशिप बिटवीन टू एक्सप्रेशन. बट इन केस ऑफ इक्वेशन देयर involve a equal to sign and in case of inequation there involve an inequality sign. So a statement between the two expression involving a single variable. If the inequation contain a single variable with highest power 1, highest power 1, that means degree of the inequation is 1 and it is the variable is also a single variable. So obviously this is a linear equation because the highest power is 1, so it is linear. So it is a linear inequation in one variable and the sign of inequality must be contained because in case of equation there must be an equal to sign, but in case of inequality there must be the sign of inequality, less than, greater than, less than equal to, greater than equal to. For example, if we says 2x plus 7 less than 3, here you can see the highest power of x is 1 and there is only one variable and also the sign is sign of inequality between these two expressions. So this is an example of linear inequation in one variable. Now what is the general form of linear inequation? Students, general form हमारी क्या कहेगी, आपका इधर जो है वो तो इधर वाला जो साइड है वो वहाँ पे आपकी ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में आपकी टर्म्स आएंगी और सेकेंड साइड पे हमारी क्या आएगी, कांस्टेंट टर्म आएगी. ठीक है, बीच में हमारा साइन ऑफ इनइक्वालिटी आएंगे. देयर आर 4 साइंस ऑफ इनइक्वालिटी, ग्रेटर देन, लेस देन, greater than equal to, less than equal to. So obviously these are the 4 general forms for the linear inequation in one variable. Now when we are solving these linear inequations, then there are two types of sets, replacement set and solution set.
स्टूडेंट्स व्हाट इज रिप्लेसमेंट सेट? देखिए हम जो है x के लिए जो वैल्यूज मतलब जिन वैल्यूज के लिए हमारी ये गिवन इन इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, दैट इज इट्स सॉल्यूशन सेट. बट दिस सॉल्यूशन सेट इज डिपेंड अपॉन द रिप्लेसमेंट सेट. द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ द दोज values from which we are to give the value of x. When we put those value of x and the equation is solved. Suppose if we are to solve the given equation for real numbers, x must belongs to real number, and then we find those real numbers which satisfy this equation. तो जो हमारे रियल नंबर सेटिस्फाई करेंगे दैट इज द सॉल्यूशन सेट. और जो हम कंप्लीट रियल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर सेट जो हम ले रहे थे दैट इज द रिप्लेसमेंट सेट. इफ वी आर सेइंग दैट वी आर टू चूज वैल्यूज ऑफ एक्स from whole numbers, then whole number set is the replacement set, and those whole numbers which satisfy the given linear inequation that prepare the solution set. Is it clear? जैसे आप देख सकते हैं इफ़ वी आर चूजिंग द लीनियर इक्वेशन x लेस देन 3 and we are choosing the values of x from natural number set, then obviously this natural number set is a replacement set. Now we'll check for those natural number which are less than 3. So obviously there are natural number start from 1. So only two natural numbers which are less than 3, 1 and 2. So this is our solution set. Okay, so now come to our next general rules for solving linear in equation in one variable. देखिए अगर हमें कोई भी लीनियर इक्वेशन इन वन ऑफ द 4 टाइप्स जो है गिवन है तो उसके लिए जनरल रूल्स क्या कहते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होता है, जो आपके कॉन्स्टेंट्स होते हैं प्लस या माइनस में उन्हें सोल्व करना होता है. ठीक है, बोथ इन साइड वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट. ठीक है, इक्वल नंबर्स में बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बोथ साइड ऑफ एन इक्वालिटी. हम जो है x के लिए किसी भी इन इक्वेशन को सोल्व करना चाहते हैं तो हमें जो है कुछ ना कुछ उसके अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो हम जो है जैसे हम इक्वेशंस को सोल्व करने में हम रूल लगाते थे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग सेम नंबर ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन. सिमिलरली इन केस ऑफ इन इक्वेशन ऑल्सो वी कैन add or subtract the say equal numbers on both hand side. The rule 2 says, देखिए in case of equation if we multiply or divide the given in equation by any positive and any negative number then there is no effect. But in case of inequation if we multiply or divide the inequation by a positive number then there is no change. But if we are multiplying or dividing the inequation by a negative number then the sign of inequality changes. Obviously if we are saying let us take an example. If we are saying x 2x is less than 2, okay, but and minus 2 is less than minus 3. If we are saying this is our n equation and we are solving this, so obviously हमें solve करने के लिए -2 से divide करना पड़ेगा. when we divide it by -2, देखिए आप चेक कर सकते हैं. if we are saying 1 is less than 2 and if we multiply it -1 less than -2, तो क्या अगर हमने -1 से multiply किया तो क्या ये बात true है? You all of you know that -2 is less than -1. So obviously ये wrong हो गया. That means the sign of inequality changes when we multiply or divide the inequality by negative number. जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा. यू कैन चेक -2 इज लेस देन -1. ओके, तो यही रूल आपको फॉलो करना है. साइन ऑफ इनइक्वालिटी आपका चेंज हो जाएगा. नाउ व्हाट आर इंटरवल स्टूडेंट्स? इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट है वो हमारा क्या बनाता है? इंटरवल बनाता है. अब वो इंटरवल जो है ऑल ऑफ यू नो दैट देर आर 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल: क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज इंटरवल एंड सेमी ओपन. तो देखिए क्लोज हमारा किस टाइप में होगा? इफ वी आर हैविंग
a less than equals to x less than equals to b. And representation of closed interval will be this type. यहाँ पे हम जो आपके एंड पॉइंट्स होते हैं इनको भी आप इंक्लूड करते हैं, तो these are also included in the representation. These will be solid. Okay, but in case of open interval students, the end points are not included. Here you can check the interval says that x is greater than a, not greater than equals to. यहाँ पे strictly वाला साइन नहीं होता. This is a slack inequality. So यहाँ से x is greater than a less than b. ओके तो यहाँ से इंटरवल में ऐड पॉइंट आपके इंक्लूड नहीं होंगे, तो ऑब्वियसली जब आप रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो यहाँ पे ए और बी आपके सॉलिड नहीं होंगे, बट हमें बस इन्हें रिप्रेजेंट करना है. और इंटरवल विल बी फ्रॉम दिस टू दिस विल बी रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर इनइक्वेशन, solution of this inequation, this interval. Okay, now what is semi open students? If we say that x is greater than equals to a, here we are on the first side, one side we are having close, and on the other the right hand side we are having open. यहाँ पे b आपका इंक्लूडेड नहीं है और a इंक्लूडेड है. दिस इज सेमी ओपन इंटरवल. ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन में ऑब्वियसली आपका क्या होगा, यहाँ से a तो सॉलिड हो जाएगा और b आपका अनसॉलिड होगा. ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें सेमी क्लोज्ड की, तो यहाँ से हमारा a इंक्लूड नहीं होगा, b इंक्लूडेड होगा. ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, x इज लेस ग्रेटर देन a एंड लेस देन इक्वल्स टू b. इसके अलावा देखिए हमारे पास ये भी आ सकते हैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स. अगर हम कंप्लीट रियल नंबर सेटिस्फाइंग x लेस देन a एंड x ग्रेटर देन a को अगर लिखना चाहें, तो ऑल रियल नंबर्स विच आर लेस देन a, तो कहाँ तक जाएंगे हमारे रियल नंबर लेस देन a तक जाएंगे फ्रॉम अप टू माइनस इन्फिनिटी. सपोज करो वी आर हैविंग a हियर, तो यहाँ a से लेके हम लेफ्ट हैंड साइड लेस देन में जा रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, आप एरो लगा देंगे. राइट हैंड साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज x ग्रेटर देन a, तो a के हम राइट हैंड साइड पे चलेंगे और सो ऑन अप टू हम एरो मार्क यहाँ पे लगा देंगे, कंप्लीट लाइन को सॉलिड कर देंगे. नाउ डिस्कस will continue with our exercise question and try to use these rules. Our first question is to solve each of the following in equation and represent its solution set on a number line. We are given this in equation and we are given this is our, what is this, x की वैल्यू हमें इनमें से चूज करनी है. So this is our replacement set. Okay, जिसमें से हमें x की वैल्यूज हम डाल सकते हैं, फाइंड आउट करनी है हमें x की वैल्यू, दैट इज आवर रिप्लेसमेंट सेट. तो यहाँ पे ये हमारा रिप्लेसमेंट सेट है, जो हमारा सॉल्यूशन सेट निकल के आएगा वो इसी का सबसेट होगा, इसी में से वैल्यूज निकल के आएंगे. अब नाउ वी कैन सॉल्व इट. देखिए सॉल्व करते वक्त हमें क्या करना होता है, हम वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इक्वल नंबर्स ऑन बोथ हैंड साइड. तो ऑब्वियसली इफ वी आर ट्रांसपोजिंग दैम from one side to another, there is the same meaning of that. ठीक है, so we can in transpose the adding and subtracting from one side to other. ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमने x के जो वेरिएबल्स x को कंटेन करने वाली टर्म्स एक साइड कर ट्रांसपोज कर ली हैं और कांस्टेंट वाली एक साइड इकट्ठी कर ली हैं. अब हम x के लिए सोल्व करें, वी आर हैविंग 5x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3, तो ऑब्वियसली हमें यहाँ से 5 रिमूव करना है. सो वी आर टू डिवाइड दिस कंप्लीट इक्वेशन बोथ हैंड साइड बाय 5. 5 इफ अ पॉजिटिव नंबर, सो देर इज अ नो चेंज इन इनइक्वालिटी. वी विल हैव x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3/5. तो यहाँ से देखिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू आएगा, सो ऑब्वियसली हमारा जो है 3/5 जो है वो इंक्लूड होगा. तो इसके लिए हमारा सॉल्यूशन सेट क्या बन के आएगा, -3/5 से लेके कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक. दिस इज इंक्लूडेड, सो यहाँ से आपका क्लोज होगा और इन्फिनिटी में हमें नहीं पता कहाँ पे आपका नंबर एंडेड नंबर है, सो यहाँ से आपका हमेशा ओपन रहेगा. सो इट इज़ अ सेमी ओपन इंटरवल.
सॉल्यूशन सेट अगर हम देना चाहें तो देखिए यहाँ से x इज ऑलवेज ग्रेटर देन -3/5, सो वी विल फाइंड द -3/5 एंड द वी आर टू, देखिए हमें कंडीशन क्या दी गई है, x जो है वो इनमें से होना चाहिए हमारा। अगर यहाँ पे कंप्लीट रियल नंबर सेट होता तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है, बट वी आर टू चूज द वैल्यूज फ्रॉम दिस रिप्लेसमेंट सेट। तो x ग्रेटर देन -3/5 अप्रोक्सीमेटली -0.6, तो -0.6 से बड़ी वैल्यूज देखिए कौन कौन सी बचती हैं, केवल 0, 1, 2, 3। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन सेट 0, 1, 2, 3। दिस इज आवर सॉल्यूशन सेट। नाउ व्हेन वी रिप्रेजेंट दिस, सो केवल हमें इन्हीं नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो मतलब अगर हम नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करें, होल नंबर को रिप्रेजेंट करें, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करें, तो केवल नंबर्स आपके इंक्लूड होते हैं, इनके बीच वाले जो है वो इंक्लूड नहीं होते। सो हमें केवल इनको सॉलिड करना होता है, ठीक है। और अगर मान लो हमारा जो है वो सॉल्यूशन सेट जो उसमें यहाँ पे ये ना देके क्या कहा जाता, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो सभी नेचुरल नंबर या होल नंबर दिया होता या इंटीजर दिया होता तो सभी इंक्लूड हो जाते हैं ना हमारे राइट हैंड साइड वाले, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो है वो सो ऑन अप टू चलते, तो वहाँ हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे 3 डॉट सॉलिड डॉट लगा देते हैं। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू दिस साइड इनफाइनाइटली, इनफाइनाइट मैनी सच टाइप ऑफ नंबर्स वी आर गेटिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है होल नंबर या कम इंटीजर्स के लिए हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। नाउ व्हेन वी आर गिवन अ रियल नंबर, तो देखिए जैसे ये हमारे पास इन इक्वेशन दी गई है, तो ऑब्वियसली हम कैसे सॉल्व करेंगे, x के एक तरफ टर्म्स और कांस्टेंट टर्म्स एक तरफ। नाउ देखिए हमारे पास है 2x लेस देन 4, सो वी आर टू डिवाइड द कंप्लीट बोथ हैंड साइड बाय 2। this 2 is positive, there is no change in equality, we will have x less than 2, x less than 2 and x is a real number, so obviously the solution set will be -infinity to 2. there is a strictly less than sign, so obviously strictly inequality है, तो यहाँ से ये आपका इंटरवल कैसा हो जाएगा, 2 is not included, so यहाँ से 2 की साइड से आपका ओपन एंड हो जाएगा। so this is an open interval। अगर हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो हमारा देखिए सॉल्यूशन सेट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, हमारा क्या है, x इज लेस देन 2, -infinity to 2 तक हमें जाना है। तो यहाँ पे देखिए 0, -1, -2, 1, 2, दिस इज आवर पॉजिटिव साइड, दिस इज नेगेटिव साइड। तो हमें 2 से लेस है, 2 इंक्लूडेड नहीं है, तो ये सॉलिड नहीं आएगा, ये हमारा हाँ इस तरीके से आएगा। और यहाँ से हमारा जो कंप्लीट लाइन होगी लेफ्ट हैंड साइड, बिकॉज एक्स इज लेस देन, सो विल गो टू आवर लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम सॉलिड कर देंगे। दिस इज आवर रिप्रेजेंटेशन फॉर एक्स लेस देन 2 वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ कम टू आवर थर्ड क्वेश्चन, दिस इज आवर गिवन इक्वेशन एंड हियर यू कैन चेक एक्स इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स इज अ रियल नंबर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं, जितने भी आपके डिनोमिनेटर हैं उनका एलसीएम निकालेंगे। हियर यू कैन सी 2 and 15, एलसीएम एंड ऑफ 2 and 15 इज 30, सो वी विल multiply both hand side of the inequation by 30. After that we get this inequation, we will solve it as we have done in our previous sums. Okay, now you can check we are having 7x less than -2, so for solving we will divide both hand side by 7. In this way you get x less than -2 by 7. This is our solution set. तो यहाँ से आप देख सकते हैं x is a real number, so our solution set will go up to -infinity, so the answer will be -infinity to -2 by 7. or you can check there is no equal to sign, so obviously -2 by 7 is not included, so this is an open and open interval we are having here, so we will find -2 by 7 to be -0.28, that is something here। यहाँ पे इसे हम सॉलिड नहीं करेंगे, केवल डॉट लगाना है हमें, और यहाँ से लेके हम -infinity तक बोल्ड कर देंगे और लाइन को, ठीक है। इस तरीके से हम बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो भी इजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं। यही मेथड है आपका
बिल्कुल सेम मेथड. सो आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड ऑल द सम्स. सो टुडे योर होमवर्क, देखिए एक हम नेगेटिव साइन वाला क्वेश्चन जो है कर लेते हैं. द फोर्थ क्वेश्चन थर्ड पार्ट, यहाँ पे आपको t बिलोंग्स टू रियल नंबर दिया गया है. तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या एलसीएम फाइंड आउट किया 4, 6 एंड 3 का. इट इज़ फाइंड टू बी 12. 12 से हमें बोथ हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर दिया. वी हैव दिस आवर इन इक्वेशन. आफ्टर दैट वी हैव collected the variable terms on one hand side and the constant terms on the other hand side. In this way we get minus 8t less than minus 1. You can check we are having the coefficient of the variable negative. So we are to divide the both hand side by a negative number. And when we multiply or divide the inequation by a negative number, the sign of inequality always changes. So obviously when we divide this by minus 8, we will get t इज ग्रेटर देन 1/8. ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट. जब आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी को चेंज करना ना भूलें. ठीक है, दिस इज आवर सॉल्यूशन सेट. यू कैन चेक 1/8 से बड़ी वैल्यू लेनी है तो आपका सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा 1/8 टू इन्फिनिटी. ठीक है, दिस इज आवर सॉल्यूशन सेट. I hope students you understood all the sum. So today your homework is to solve sums 1 to 4, complete all the parts of exercise 6.1 in your fair notebook. Thank you. Have a nice day.